Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. I am Pramod Mishra. Today I am explaining the chapter 2 Early Nationalist Movements of Class 8th A. While Indian society was gradually being overpowered by the English rule, important developments were taking place elsewhere in the world. Europe in the 18th and 19th centuries went through rapid changes in the fields of religion, technology, politics, social structure, and geographical explorations. A few of these major events and movements have been discussed in this chapter, including the American and French Revolution and the American Civil War. All these events gave impetus to the earliest national movements. जब भारतीय समाज पावर्ड हो रहा था इंग्लिश रूल के द्वारा, तो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए संसार में देखे गए और 18-19 सेंचुरी में यूरोप में रिलीजन के फील्ड में, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, सोशल स्ट्रक्चर और जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन के फील्ड में चेंजेज आए और इनमें से कुछ मेजर इवेंट्स थे और मूवमेंट्स थे इस चैप्टर में जो डिस्कस किए जाएंगे। इनमें अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन है और अमेरिकन सिविल वार है और ये सारे इवेंट्स अर्लीस्ट नेशनल मूवमेंट को पर प्रभाव डालते हैं। व्हेन पीपल who inhabit a common territory, speak a common language and belong to a common culture begin to consider themselves as one of the distinct from others, they are referred to as nation. जब लोग कॉमन टेरिटरी में इन्वाइटेड करते हैं, कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं, कॉमन कल्चर को बिलोंग करते हैं तो और डिस्टिंक्ट फॉर्म्स को कंसीडर करते हैं तो उसे नेशन कहते हैं। द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, रेवोल्यूशन क्रांति का युग। रेवोल्यूशन मीन्स अ ड्रास्टिक चेंज दैट अफेक्ट्स सोसाइटी, इकोनॉमी, politics and cultural spheres of life. The 18th century history of the world can be termed as a period of revolution, as it was during this century that revolutions broke out in America and France. The American Revolution, also termed as the War of American Independence, cultivated the idea of democracy. It was an important landmark which paved the way for nationalist movement in the contemporary colonial world. रेवोल्यूशन मीन्स होता है ड्रेस्टिक चेंज, अचानक चेंज होना, बदलाव आना, जिससे समाज में, आर्थिक दशा में, राजनीति में और सांस्कृतिक आदमी के सांस्कृतिक क्षेत्र में। और संसार का जो 18th सेंचुरी की हिस्ट्री है वो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन के नाम से जानी जाती है क्योंकि ये ऐसी सेंचुरी थी जिसमें रेवोल्यूशन अमेरिका और फ्रांस में हुआ। अमेरिकन रेवोल्यूशन को वार ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है और जो इसमें डेमोक्रेसी की आइडिया यानी प्रजातंत्र का आइडिया डेवलप हुआ और ये इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है जिसने नेशनल मूवमेंट को बनाया कॉलोनियल वर्ल्ड में। द अमेरिकन रेवोल्यूशन 1775 एंड 1783, अमेरिका की क्रांति। Post 1776, America was broadly comprised of northern and southern states which had remarkable difference in their economies. While the north became heavily industrialized, the south was dependent on labor-intensive agriculture. The labor comprised slaves brought from Africa to work on plantations of crops like cotton, sugar and tobacco. 1776 में अमेरिका नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स में कंप्राइज हो गया, डिवाइड हो गया था, जिसको रिमार्केबल डिफरेंस था उनकी इकोनॉमीज में, अर्थव्यवस्था में। नॉर्थ जो है ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र था और साउथ जो है लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर में डिपेंड करता था। तो लेबर जो है स्लेव्स के रूप में अफ्रीका से लाए जाते थे जो कि काटन, शुगर और टोबैको की फसलों के प्लांटेशन में काम करते थे। पीपल माइग्रेटेड टू अमेरिका फ्रॉम यूरोप ड्यू टू मैनी रीजन, एक्सप्लोरेशन न्यू लैंड्स, रिलीजियस persecution in Europe and the hope for a better lifestyle. They settled and formed the 13 colonies of the eastern part of North American continent. The majority of settlers were from England. These people were referred to as Pilgrim Fathers. As the mother country of these colonies, England imposed heavy taxes on them. The settlers had no representative in the British Parliament and the colonial government was oppressive. लोग जो है अमेरिका से यूरोप को माइग्रेट कर रहे थे ड्यू टू मैनी रीजन, बहुत सारे कारणों से। इनमें न्यू लैंड्स का एक्सप्लोरेशन और यूरोप में रिलीजियस परक्यूशन और अच्छी लाइफ स्टाइल की आशा के लिए वो वहाँ पर सेटिल हो गए और 13 कॉलोनीज नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में के ईस्टर्न पार्ट में बनाई
और ये सेटलर जो मेजॉरिटी थी सेटलर्स की वो इंग्लैंड से थी और ये पीपल पिलग्रिम फादर के रूप से जाने जाते थे। और इन कॉलोनियों के जो मदर कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड ने उस पर भारी टैक्स लगाया। सेटलर्स के कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इस तरह से कॉलोनियल गवर्नमेंट उनको शोषित कर रही थी, पीड़ित कर रही थी। स्टैम्प एक्ट 1765, England came up with the idea of Stamp Act in 1765, which made affixation of stamps on all documents compulsory. It passed the Stamp Act in Parliament, imposing taxes on all business conducted in America. The Americans not only protested with the slogan "No taxation without representation," but also boycotted British goods and forced the British Parliament to withdraw the Stamp Act. इंग्लैंड जो है 1765 में स्टैम्प एक्ट का विचार लेकर आया, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स में स्टैम्प फिक्स होती थी, लगाई जाती थी, यानी कंपलसरी था लगाना। और ये स्टैम्प एक्ट पार्लियामेंट में पास हो गया और सारे बिजनेस पर भारी टैक्स लगाया गया अमेरिका में जो कंडक्ट होता था। अमेरिकन्स ने स्लोगन के साथ इसका विरोध किया कि नो टैक्सेशन, टैक्स नहीं देंगे जब तक उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। और इससे के साथ में ब्रिटिश सामान का बहिष्कार किया और ब्रिटिश पार्लियामेंट में फोर्स बना दिया कि स्टैम्प एक्ट को विड्रा कर ले, हटा ले। बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन चाय पार्टी। European philosophers like Voltaire, Rousseau, John Locke and Montesquieu inspired American colonists to fight for liberty. The most famous of all the anti-British protests of the settlers was seen in the incident known in history as the Boston Tea Party. The major concern for merchants was that Tea Act gave the East Indian Company a monopoly on the sea trade, and there was fear that this government created monopoly might be extended in the future to include other goods. Therefore, one night in 1773, some settlers disguised as Red Indians raided a British ship at the Boston harbor and threw crates of tea into the sea. The representatives of colonies appealed to King George III, the British ruler at the time, to withdraw all oppressive rules and taxes. However, the Boston Tea Party was looked at an act of defiance and rebellion and resulted in open hostility between the settlers and the British Parliament. यूरोपियन फिलासफर जैसे वोल्टायर, रसेउ, जॉन लॉकी और मॉन्टेस्क्यू ने अमेरिकन कॉलोनिस्ट को इंस्पायर किया कि अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई करें। और सारे एंटी ब्रिटिश प्रोटेस्ट के जो सेटलर्स थे उनमें से फेमस थे जो वो उन्होंने इंसिडेंट को देखा, इस घटना को देखा इतिहास में बोस्टन टी पार्टी के नाम से। और मेजर कंसर्न था जो मर्चेंट्स का, वो टी एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने टी एक्ट दिया जो कि टी एक्ट ट्रेड की एक मोनोपोली थी और वे इससे डरते थे कि गवर्नमेंट मोनोपोली बना लेगी फ्यूचर में और अपना सामान बेचने के लिए बढ़ा लेगी और दूसरी सामान भी से बेचेगी। इसी तरह से 1773 में एक रात में कुछ सेटलर्स आए डिस्गाइज करके, भेष बदल करके रेड इंडियंस के रूप में, और उन्होंने बोस्टन हार्बर पर ब्रिटिश शिप पर हमला कर दिया और समुद्र में चाय के क्रेट्स को फेंक दिया। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉलोनीज अपील टू किंग जॉर्ज III। कॉलोनीज के जो रिप्रेजेंटेटिव थे किंग जॉर्ज III थे, उन्होंने अपील किया कि ब्रिटिश रूलर एट द टाइम, उस समय ब्रिटिश के रूलर थे, कि सारे ऑप्रेसिव रूल्स और टैक्सेस को विड्रा कर लिया जाए, हटा लिया जाए। हाउएवर द बोस्टन टी पार्टी वाज, जब जो ये बोस्टन टी पार्टी थी डिफाइंस और रिबेलियन के रूप में देखी गई और ओपन हॉस्टिलिटी का इसका परिणाम हुआ सेटलर्स के बीच में और ब्रिटिश पार्लियामेंट के बीच में। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। On July 4, 1776, representatives of the 13 colonies held a conference at Philadelphia and adopted the Declaration of Independence. American philosopher Thomas Jefferson was the principal author of Declaration. 4 जुलाई 1776 को 13 कॉलोनी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस फिलाडेल्फिया में हेल्ड किया जिसमें अडॉप्ट किया गया इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन। अमेरिकन फिलासफर थॉमस जेफरसन इस डिक्लेरेशन के प्रिंसिपल ऑथर थे। आफ्टर दिस आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ। Hello, I am Pramod Mishra from Shivam Convent. Today I am explaining the chapter 2, Early Nationalist Movement of Class 8A. Impact of the Revolution.
The colonial rule ended as a result of the American War of Independence. रेवोल्यूशन का प्रभाव, कॉलोनियल ब्रिटिश रूल समाप्त हुआ अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के रिजल्ट के परिणाम स्वरूप. द फेडरल गवर्नमेंट वाज रीऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 ब्रांचेज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिंग सैल्यूटरी चेक्स एंड बैलेंसेज इन 1789. फेडरल गवर्नमेंट फिर से रीऑर्गेनाइज हो गई 3 ब्रांचों में क्रिएटिंग सैल्यूटरी चेक्स और बैलेंसेज के प्रिंसिपल पर इन 1789 में. जॉर्ज वाशिंगटन, हु हैड लेड द रेवोल्यूशनरी आर्मी to victory, was the first president to be elected under the new constitution. The Bill of Rights, forbidding federal restriction of personal freedoms and guaranteeing a range of legal protections for the citizens, was adopted in 1791. जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि रेवोल्यूशनरी आर्मी की विक्ट्री को प्राप्त किया था और वो नए कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे. द बिल ऑफ राइट्स का अधिकार और फॉरबिडिंग फेडरल रेस्ट्रिक्शंस ऑफ पर्सनल फ्रीडम और जो गारंटी थी सिटीजन्स के लिए लीगल प्रोटेक्शन की रेंज की, वो अडॉप्ट की गई 1791 में. आफ्टर दिस आई विल स्टार्ट द काजेज ऑफ द अमेरिकन सिविल वार. अमेरिकन सिविल वार के कारण, आफ्टर हैविंग एस्टेब्लिश इटसेल्फ एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन 1789, यूएसए मार्च टूवर्ड्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस. The states in North developed large manufacturing units and were looking forward to becoming a strong industrial economy. Towns and cities continued to grow with the introduction of railways and constructions of canals. On the other hand, the states in the south had large plantations of cash crops which formed the basis of its economy. Most people were involved in either cotton or sugar plantations. These regions were predominantly rural in character and exchanged raw material for industrial goods. डेमोक्रेटिक कंट्री 1789 में इस्टेब्लिश होने के बाद यूएसए ने इकोनॉमिक प्रोग्रेस की ओर मार्च किया और नॉर्थ के जो स्टेट्स थे वो बड़े इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को डेवलप करते थे और स्ट्रांग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे थे. टाउन्स और सिटीज़ लगातार ग्रो कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल्स हो गया था और रेलवेज़ का इंट्रोडक्शन हो गया था. दूसरी तरफ साउथ के जो स्टेट्स थे उनमें कैश क्रॉप का प्लांटेशन हो गया था जो कि इनकी इकोनॉमी का बेसिस बन गया था. मोस्ट पीपुल वर इन्वॉल्व, बहुत अधिकांश लोग काटन या शुगर प्लांटेशन में इन्वॉल्व थे और ये रीजन प्रीडोमिनेंटली रूरल थे करेक्टर में, यानी देहाती क्षेत्र में थे और रॉ मटेरियल इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए एक्सचेंज करते थे. मीनवाइल यूरोप वाज इन द इनिशियल स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. टेक्सटाइल फैक्ट्रीज रिक्वायर्ड बेल्स ऑफ कॉटन व्हिच वर बीइंग सप्लाइड बाय द प्लांटर्स ऑफ द सदर्न स्टेट्स. द डिमांड फॉर कॉटन ग्रू एंड विद दैट द डिमांड फॉर लेबर इन द प्लांटेशन इन द साउथ आल्सो इंक्रीज्ड. यूरोप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की इनिशियल स्टेज में था. टेक्सटाइल फैक्ट्रीज से कॉटन की बेल्स रिक्वायर की जाती थी जो कि शुगर सदर्न स्टेट के प्लांटर से सप्लाई की जाती थी. डिमांड कॉटन की जो डिमांड थी वो ग्रू हो गई थी और लेबर के लिए डिमांड हो गई थी प्लांटेशंस में जो साउथ में इंक्रीज हो गई थी. After this, I am starting. In those days, slaves were brought from Africa, transported in ships under harsh conditions, and made to work in plantations. They were not given any wages. They were auctioned in public like property. They had to live in unhygienic conditions, were poorly fed, and suffered from various diseases. The cotton plantations were based on the practice of slavery, without which the economy would not have run. Hence the southern states were in favor of slavery and wanted to spread it further. उन दिनों स्लेव्स जो है गुलाम अफ्रीका से लाए जाते थे और शिप से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था ख़राब कंडीशन में और प्लांटेशन में काम करने के लिए रखा जाता था और उनको सैलरी नहीं दी जाती थी और उनको जनता की तरह प्रॉपर्टी की तरह जनता में ऑक्शन यानी नीलामी की जाती थी और वो ख़राब दशा में रहते थे और उनको ख़राब भोजन मिलता था और बहुत सारे रोगों से सफ़र करते थे. कॉटन प्लांटेशंस बेस करता था स्लेवरी के प्रैक्टिस के आधार पर जो जिससे कि इकोनॉमी उनकी अच्छी नहीं थी.
चल नहीं रही थी। हैं इसलिए सदर्न स्टेट्स स्लेवरी के फेवर में थे और इसको स्प्रेड करना यानी फैलाना चाहते थे। However, the northern state wanted to abolish the slave trade. Slavery was looked upon as an evil. These states believed in liberal ideas. Even in the British Empire, slavery was abolished by the middle of 19th century. The northern states began the anti-slavery movement, which was further strengthened by Harriet Beecher Stowe's novel Uncle Tom's Cabin, which portrayed the ugly side of the slavery. This threatened the southern states as their economy was largely supported by the labor of these slaves. यद्यपि नार्दर्न स्टेट जो थे स्लेव ट्रेड को एबोलिश करना चाहते थे और स्लेवरी को एक बुराई की तरह देखते थे और ये स्टेट बिलीव करते थे लिबरल आइडियाज में, और ब्रिटिश एम्पायर में भी स्लेवरी को एबोलिश किया गया था 19th सेंचुरी के मिडिल में। नार्दर्न स्टेट्स एंटी स्लेवरी मूवमेंट शुरू किया नॉर्दर्न स्टेट ने, जो कि आगे स्ट्रेंथर मजबूत कर दिया हैरिट बेचर स्टोवेल्स के नावल ने अंकल टॉम्स केबिन ने, और जिससे स्लेवरी की अगली साइड प्रोटेक्ट हुई और इससे सदर्न स्टेट्स की इकोनॉमी जो है इन स्लेव्स के लेबर के द्वारा सपोर्ट की जाती थी। सेकेंडली, द सदर्न स्टेट्स wanted to remain independent and wanted to take their own decision. The northern states, on the other hand, decided to remain as one nation at the time. As in the case now, the USA had a federal government at the center. Before the war began, it had 34 states, with Kansas being the latest addition. Today, the USA has 50 states. दूसरी तरफ सदर्न स्टेट चाहते थे, आज़ाद होना चाहते थे और अपना निर्णय लेना चाहते थे। नार्दर्न स्टेट्स दूसरी तरफ एक नेशन बनने का निश्चय कर रहा था और उस समय यूएसए एक फेडरल गवर्नमेंट में था सेंटर में, और युद्ध शुरू होने से पहले इसमें 34 स्टेट्स थे, जिसमें कंसस लेटेस्ट एडिशन था। आज यूएसए में 50 स्टेट्स हैं। अब्राहम लिंकन, हु हैड स्पोकन अगेंस्ट स्लेवरी, was selected as a candidate of the Republican Party for the post of the President of USA in 1860. This further widened the gap between the northern states. Finally, when Abraham Lincoln became the president in 1860, the southern states seceded from the Union. अब्राहम लिंकन जो स्लेवरी के खिलाफ बोलते थे, वो सिलेक्ट किए गए रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट के लिए और 1860 में यूएसए की प्रेसिडेंट के रूप में, और इससे गैप बन गया नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स में। अंत में जब अब्राहम लिंकन 1860 में प्रेसिडेंट बन गए तो सदर्न स्टेट्स ने यूनियन से सेडिट कर दिया। The 11 states established a new nation called the Confederate States of America. Jefferson Davis became its president. 11 स्टेट जो है नए नेशन के रूप में इस्टेब्लिश हो गए, जिन्हें अमेरिका का कॉन्फेडरेट स्टेट कहते थे, और जेफरसन डेविस इसके प्रेसिडेंट बन गए। आफ्टर दिस आउटब्रेक ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर, the secession of the southern state ultimately led to the outbreak of the Civil War on April 12, 1861, which ended in 1865. A civil war is a war between the members of same society. The issue of slavery affected presidential elections in USA in the 1850 and 1860. Abraham Lincoln, who became the President of America in 1860, was from the North and had come to power with the aim of abolishing slavery in USA. Slavery was considered to be a blot on the American society, as its constitution granted everybody as an equal status. सदर्न स्टेट का जो सेसेशन था उससे सिविल वार अप्रैल 12, 1861 में शुरू हो गया और 1865 में समाप्त हुआ। एक सिविल वार एक ऐसा युद्ध होता है जो सेम सोसाइटी के मेंबर के बीच में होता है, और स्लेवरी का जो इशू था वो प्रभावित हो गया यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद में 1850 और 1860 के बीच में। अब्राहम लिंकन जो 1860 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने, वो नॉर्थ से थे और उन्होंने यूएसए में स्लेवरी को समाप्त करने के उद्देश्य के लिए पावर में आ गए। स्लेवरी जो है अमेरिकन सोसाइटी में एक धब्बे के रूप में माना जाता था, क्योंकि ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन हर व्यक्ति को इक्वल स्टेटस ग्रांटेड करता था। द स्टेट्स इन द नॉर्थ आर द फेडरल यूनियन लेड बाय प्रेसिडेंट लिंकन फॉर द वार नॉट ओनली टू abolish slavery, but also to establish that no state can secede from the Union, whatever the issue might be. The American Civil War, a bitterly fought war, also introduced some elements of modern warfare. Muskets was
replaced by rifles and early machine guns. Armored steam-powered ships were other modern weapons which began to be used. Submarines and balloons were also used. नॉर्थ के स्टेट जो थे फेडरल यूनियन, उनमें प्रेसिडेंट के द्वारा बनाई गई और उन्होंने युद्ध लड़ा, न कि स्लेवरी को केवल समाप्त करने के लिए, बल्कि यूनियन से कोई स्टेट सेसीड न कर सके इसके लिए इस्टेब्लिश करने के लिए बना, और चाहे उसका मामला कोई भी रहा हो। अमेरिकन सिविल वार एक बिटरली फाट वार था, एक करवाट भरा युद्ध था जो कि इंट्रोड्यूस किया गया मॉडर्न वारफेयर के कुछ एलिमेंट्स के द्वारा। मस्केट्स को राइफल्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया और अर्ली मशीन्स के गन्स के द्वारा, और आर्मर्ड स्टीम पावर जो शिप्स थे वो मॉडर्न वेपन्स थे और जिनको यूज किया गया। सबमरीन्स और बैलून्स को भी यूज किया गया। Communication and transport system were also being advanced in this time. Telegraph was used extensively and for the first time in the history of warfare. The steamboat and the railroad steam engine were used. Most of this war was fought in the southern state and almost 6 lakh men were killed and many others were wounded. कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा एडवांस उसमें हो गया था। टेलीग्राफ को एक्सटेंसिवली यूज किया जाता था और वारफेयर की हिस्ट्री में पहली बार यूज किया गया। स्टीम बोट और रेल रोड स्टीम इंजन जो थे इनको यूज किया गया और अधिकांश जो युद्ध था वो सदर्न स्टेट्स में लड़ा गया और इसमें लगभग 6 लाख लोग मारे गए और बहुत सारे घायल हो गए। आफ्टर दिस आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ, स्टे होम।